حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اہم واقعہ، ولادت یعنی پیدائش کا واقعہ۔ عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم اس سال ہوا جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس سال یمن کا حاکم ابراہہ اپنی بڑی فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ آیا تھا۔ ابراہہ کا مقصد، اس نے یمن میں ایک بہت بڑا گرجا گھر یعنی کلیسا بنوایا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ لوگ کعبہ کی بجائے وہیں آ کر عبادت کرے۔ جب عرب کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس جگہ کی توہین کی تو وہ غصے میں کعبہ کو گرانے نکل پڑا۔ جب وہ ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے کو بھیجا۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ یہ پتھر جب ابراہہ کی فوج پر گرے تو ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے بھوسا چبایا ہوا ہو۔ پوری فوج ہلاک ہو گئی اور کعبہ محفوظ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ہوئی۔ یہ بہت بڑی نشانی تھی کہ جس سال اللہ نے اپنے گھر کعبہ کی حفاظت کی، اسی سال اپنے سب سے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اب دنیا میں ایک نور آنے والا ہے جو انسانیت کو ظلمت سے نکال کر حق کی روشنی تک پہنچائے گا۔ پیدائش کا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو زیادہ تر علماء کی رائے کے مطابق مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس دن دنیا میں کئی عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہوئی، جیسے کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 برج گر گئے۔ مذہبی آگ جو ایرانیوں کے مندروں میں 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی۔ سمندر سوکھ گئے اور قیصر یعنی روم کا بادشاہ کا دربار ہل گیا۔ یعنی آپ کی پیدائش صرف ایک بچہ پیدا ہونے کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خاص اللہی نشانی تھی کہ اب دنیا میں رحمت، انصاف اور ہدایت کا دور شروع ہوگا۔ یتیمہ کا دور، پیدائش سے پہلے والد کا انتقال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ مکہ سے باہر یعنی مدینہ کی طرف سفر میں بیمار پڑ کر انتقال کر گئے تھے۔ اس وقت آپ کی والدہ آمنہ گربھوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی انسانوں کے سہارے سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آمنہ کو آپ کے رشتہ داروں سے ملنے اور والد کی قبر پر دعا کرنے کے لیے مدینہ لے گئے۔ واپسی کے سفر میں ابوا نامی جگہ پر آمنہ بیمار ہو کر انتقال کر گئی۔ اس وقت ایک معصوم بچہ جس نے کبھی والد کا سایہ نہیں دیکھا تھا اب والدہ کے سائے سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ دادا عبد المطلب کی کفالت۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش سنبھالی۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، مکہ کے سردار تھے، لیکن جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو وہ آپ کو اپنے پاس بیٹھاتے اور لوگوں سے کہتے یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا مقام پائے گا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ چاچا ابو طالب کی حفاظت۔ اس کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی۔ وہ آپ سے سچی محبت کرتے تھے اور ہر مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ حالانکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت کی۔ یتیمی کا اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یتیمی کا دور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نمبر 1، اللہ جسے اونچا مقام دینا چاہتا ہے اسے بچپن سے ہی بڑی امتحانوں سے گزارتا ہے۔ نمبر 2، انسان کو کسی پر بے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، یتیم بچوں کے ساتھ رحمت اور محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پناہ دی؟ یعنی اللہ ہی نے ہر حال میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور رہنمائی کی۔ دادا اور چاچا کی پرورش۔ دادا عبد المطلب کا پیار۔ والد کے انتقال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ عبد المطلب اس وقت مکہ کے سردار تھے اور بہت عزت والے شخص مانے جاتے تھے۔
लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे। मक्का में जब भी लोग उनके पास इकट्ठा होते तो उनके लिए एक ख़ास जगह पर बिछौना बिछाया जाता, उस पर कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जब छोटा बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो सीधे उसी जगह बैठे जाते। लोग रोकना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, इसे मत रोको, इस बच्चे का बहुत बड़ा भविष्य है। यानी आपके दादा बचपन से ही आपके अंदर एक नूर, सच्चाई और अल्लाह की खास रहमत महसूस करते थे। दादा का इंतकाल सिर्फ 2 साल तक यानी 6 से 8 साल की उम्र तक दादा ने आपकी परवरिश की। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से रुखसत कर गए। चाचा अबू तालिब की कफालत, दादा के बाद आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी जिम्मेदारी संभाली। अबू तालिब गरीब थे लेकिन दिल से बहुत बड़े थे। वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चे से भी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हर वक्त आपको अपने साथ रखते, सफ़र पर भी ले जाते और हमेशा आपकी हिफाजत करते। मक्का में जब भी किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तो अबू तालिब सामने खड़े हो जाते और हर हाल में आपको बचाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा का हाथ बटाने लगे, बकरियां चराते और छोटे छोटे काम करके घर का बोझ हल्का करते। ये साबित करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही मेहनत और जिम्मेदारी उठाना सीख लिया था। नंबर 1, असली परवरिश सिर्फ खाने पिलाने का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत, रहमत और हिफाजत का नाम है। नंबर 2, अल्लाह जिसे अपना नबी बनाता है उसे बचपन से ऐसे लोगों के साए में रखता है जो उसकी हिफाजत करे। नंबर 3, हमें भी यतीम बच्चों और कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यतीम रहे और दूसरे के सहारे पलकर दुनिया के लिए रहमत बने। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया और पनाह दी? यानी अल्लाह ने कभी आपके अकेला नहीं छोड़ा। पहले वालिदा, फिर दादा और फिर चाचा अबू तालिब की मोहब्बत से आपको सहारा मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी और उनकी सच्चाई व अमानतदारी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो उस वक्त मक्का में लोग तरह तरह की बुरी आदतों और गुनाहों में पड़े थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी बुराई में शामिल नहीं हुए। अल्लाह ने आपकी फितरत को पाक रखा। आप हमेशा सच बोलते, दूसरे की मदद करते और अमानत में खयानत कभी नहीं करते। आपकी सबसे बड़ी पहचान सच्चाई थी। लोग अक्सर कहते मोहम्मद झूठ नहीं बोलते। यही वजह थी कि मक्का के लोग आपको अस-सादिक यानी सच्चा कहकर पुकारते थे। चाहे बड़ा मामला हो या छोटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। मक्का के लोग अगर अपनी कोई कीमती चीज़ किसी के पास रखना चाहते तो सबसे पहले आपके पास रखते, क्योंकि वे जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत में कभी खयानत नहीं करेंगे। इसी वजह से लोग आपको अल अमीन यानी भरोसेमंद कहने लगे। ये नाम इतना मशहूर हुआ कि जब आप बाजार में चलते तो लोग दूर से ही कहते, ये देखो अल अमीन आ रहे हैं। जवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई और मेहनत मजदूरी की। बाद में आपने तिजारत यानी व्यापार शुरू किया और ईमानदारी से व्यापार किया। लोग जब देखते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौदा करते हैं तो उसमें कोई धोखा नहीं होता तो वे बहुत प्रभावित होते। आपकी ऐसी ईमानदारी की वजह से मक्का के मशहूर और अमीर ताजिरा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने आप को अपने कारोबार में शामिल किया। आपकी सच्चाई और भरोसेमंदी की वजह से लोग आपसे मोहब्बत और इज्जत करने लगे। बड़े बड़े झगड़े भी अगर होते तो लोग चाहते कि फैसला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। उदाहरण, काबा की तामीर के वक्त हजर अस्वद को कौन अपनी जगह रखे, इस पर कबीलों में झगड़ा हुआ। तब आपने एक हिकमत से सभी को राजी कर दिया और वह मसला हल हो गया। नंबर 1, जवानी में भी इंसान अगर सच्चा और ईमानदारी रहे तो पूरा समाज उस पर भरोसा करता है। नंबर 2, झूठ और धोखे से कभी इज्जत नहीं मिलती। असली इज्जत सिर्फ सच्चाई और अमानत से मिलती है। नंबर 3, मुसलमान को चाहिए कि अपने कारोबार और रिश्तों में हमेशा ईमानदारी दिखाए ताकि लोग उसे भरोसे के लायक समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई इंसान को नेकियों की तरफ ले जाती है और नेकियां जन्नत तक पहुंचा देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ ज़िंदगी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का परिचय। मक्का की सबसे इज्जतदार और अमीर ताजिरा थी। वह बहुत ही नेक और समझदार औरत थी। उनकी उम्र उस समय 40 साल थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारत में ईमानदारी दिखाना। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपका ईमानदार कारोबार देखकर आपको अपना साझेदार बनाया। आपने उनका माल लेकर शाम की तरफ सफ़र किया और पूरी ईमानदारी और कामयाबी के साथ लौटे। उनके नौकर मैसरा ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सच्चे, अमानतदार और रहमत वाले इंसान हैं। निकाह का फैसला। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक देखकर खुद निकाह का पैगाम भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचाओं से मशवरा किया कि और फिर आपका निकाह हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ। निकाह के वक्त आपकी उम्र 25 साल थी। शादी के बाद जिंदगी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको बहुत सुकून और सहारा दिया। आपकी सारी तिजारत और दौलत उन्होंने आपके हवाले कर दी। आप दोनों की शादी की जिंदगी बहुत मोहब्बत, इज्जत और भरोसे पर रही। अल्लाह ने आपको और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को कई औलाद से नवाजा, जिनमें हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का बड़ा मकाम। जब पहली बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही यानी कुरान नुज़ूल शुरू हुआ तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराया। उस वक्त सबसे पहले आपकी मदद और दिलासा दिलाने वाली आपकी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। उन्होंने कहा, कभी नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्ते निभाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और मुसीबतदार लोगों को सहारा देते हैं। यही वजह है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को इस्लाम की पहली औरत बनने का बड़ा मकाम मिला। नंबर 1, शादी की जिंदगी में मोहब्बत और भरोसा बहुत अहमियत रखता है। नंबर 2, एक नेक औरत के पति की जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा होती है। नंबर 3, मुसलमानों को चाहिए कि शादी को इज्जत और भरोसे पर कायम रखे, दिखावे या झूठ पर नहीं। नंबर 4, मुश्किल वक्त में बीवी और शौहर को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया एक सरमाया है और दुनिया का सबसे अच्छा सरमाया नेक बीवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का आगाज, पहली वही, अल्लाह का इंतखाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच्चाई, अमानत और नेक अखलाक के लिए मशहूर थे। इसी वजह से मक्का के लोग आपको अल अमीन यानी भरोसेमंद कहा करते थे। अल्लाह ने आपको इंसानियत की रहनुमाई के लिए चुना। गारे हिरा में इबादत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद फरमाते और गारे हिरा यानी मक्का के पास एक पहाड़ की गुफा में जाकर इबादत करते थे। वहां आप तन्हाई में बैठकर अल्लाह की याद करते और गौर फिक्र करते। यही वह वजह थी जहां सबसे पहला कुरान नाजिल हुआ, पहली वही का नुज़ूल। एक दिन रमजान के महीने में गारे हिरा में फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर नाजिल हुए। उन्होंने कहा, इकरा यानी पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं चाहता। 3 बार यही हुआ और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथरे से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। पहली वही के बाद हाल। इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए और घर लौट आए। आपने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, मुझे कब्ल ओढ़ा दो, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने आपको दिलासा दिया और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्तों को जोड़ते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और मुसीबत ज़दा लोगों का सहारा बनते हैं। वो पहली ईमान लाने वाला शख्सियत। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले में औरतों में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, मर्दों में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, बच्चों में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 1, इल्म की अहमियत। अल्लाह की पहली वही पढ़ो से शुरू हुई। नंबर 2, इंसान को हमेशा अल्लाह की पहचान और उसके इल्म की तलाश करनी चाहिए। नंबर 3, मुश्किल वक्त में नेक बीवी और सच्चे साथी इंसान का हौसला बढ़ाते हैं। नंबर 4, इस्लाम की शुरुआत सच्चाई और इल्म से हुई, ना कि ताकत या जंग से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो नाजरीन, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
خدا حافظ.